हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन अली अंसारी फ्रॉम जीएमसी कोटा। इन दिस वीडियो अपन बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की। देखिए ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। इट इज़ द एम्डेन मेरो पाथवे। इस अपन क्या कहते हैं, एम्डेन मेरो पाथवे, एंड इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुवेट मॉलिक्यूल और लैक्टेट इन द एनारोबिक कंडीशन। ग्लाइकोलाइसिस अक्कर इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट मे बी ऑपरेट एरोबिकली और एनारोबिकली. It is the only source of energy in the matured RBC because matured RBC does not have mitochondria, so they lack of oxidative phosphorylation. So the only source of energy in matured RBC is the glycolysis. Now anaerobic glycolysis provide energy to the muscles, यानी मसल्स में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। जब भी आप रैपिड एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है कि नहीं मसल्स में, तो वो कहाँ से हुआ, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से होता है। देन ग्लाइकोलाइसिस प्रोवाइड कार्बन स्केलेटन फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड एंड ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ द फैट. Activity is low in the cardiac muscle. Whenever there is ischemic attack, it has poor prognosis. देन रिवर्सिबल स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस की जो रिवर्सिबल स्टेप्स होगी वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, नाउ अपन बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप. सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. फर्स्टली ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज. देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन द हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज विच वी सी इन द फर्दर वीडियोज. So glucose is converted into glucose 6 phosphate. There is a conversion of ATP into ADP, यानी यहाँ पर ATP का ब्रेकडाउन हो रहा है. ठीक है, देन ग्लूकोज 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate in the presence of isomerase. Then fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 bisphosphate in the presence of phosphofructokinase. This is the pacemaker enzyme or key enzyme. ATP is break into ADP. Then fructose 1,6 bisphosphate is converted into DHAP, dihydroxy acetone phosphate, and glyceraldehyde 3 phosphate, and this DHAP and glyceraldehyde 3 phosphate, they are isomerized with each other in the presence of isomerase enzyme. Now glyceraldehyde 3 phosphate is converted into 1,3 bis phosphoglycerate in the presence of glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase enzyme. There is a formation of NADH plus H plus. Then 1,3 bis phosphoglycerate is converted into 3 phosphoglycerate in the presence of 1,3 bis phosphoglycerate kinase, and there is a formation of ATP in the substrate level phosphorylation. Then 3 phosphoglycerate is converted into 2 phosphoglycerate in the presence of mutase enzyme. Then 2 phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate in the presence of enolase enzyme and magnesium ion. Then phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate in the presence of pyruvate kinase. This is the last step of glycolysis, and in this step there is also the formation of ATP at the substrate level phosphorylation. Now if this glycolysis is anaerobic glycolysis, then there is formation of lactate finally from the pyruvate, and in this reaction there is a use of NADH plus H plus which is formed earlier in the glycolysis step, and this reaction occur in the presence of lactate dehydrogenase enzyme in anaerobic condition. So these are the steps in the glycolysis. Now in glycolysis we see there are 3 irreversible steps. मतलब कौन कौन सी स्टेप्स है, 3 इरिवर्सिबल स्टेप है. फर्स्ट जिसमें हेक्सोकाइनेज आ रहा है, सेकंड जिसमें फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम एक्ट कर रहा है, और थर्ड जिसमें पायरुवेट काइनेज एंजाइम एक्ट कर रहा है. तो ये 3 स्टेप जो है वो कौन सी है, इरिवर्सिबल स्टेप. ठीक है, मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट स्टेप दे आर द इरिवर्सिबल स्टेप. ठीक है, नाउ फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज थर्ड स्टेप में एक्ट कर रहा है, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन. दिस स्टेप इज कॉल्ड कमिटेड स्टेप और रेट लिमिटिंग स्टेप. फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज ऑल्सो नोन एज की एंजाइम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज की एंजाइम और पेसमेकर एंजाइम. ठीक है, यहाँ पर 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है. एक तो कब, जहाँ पर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम एक्ट कर रहा है, और एक लास्ट स्टेप जिसमें पायरुवेट काइनेज एंजाइम एक्ट कर रहा है. तो 2 ATP मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है. नाउ अपन ने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में एक मॉलिक्यूल, जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. पायरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड. सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कंप्लीट ऑक्सीडेशन. ओके, सो देर इज टोटल प्रोडक्शन ऑफ
4 ATP molecule at the substrate level phosphorylation and 2 ATP molecule will be utilized here. ठीक है, तो देखो 2 ATP की जो मॉलिक्यूल है इट इज़ कंज्यूम, ठीक है, एंड 4 ATP एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्म्ड, ठीक है, एंड 2 NADH प्लस H प्लस इज फॉर्म्ड. सो 2 NADH प्लस H प्लस से कितने मिल जाएंगे अपन को? 2 इंटू 2.5 ATP मीन्स 5 ATP इज formed at the electron transport chain via NADH plus H plus. So total net gain of ATP will be कितना हो गया? 7 ATP. Okay, net gain of ATP is 7. Now regulation of glycolysis. So in this we can see first point, hexokinase, it is negatively inhibited by ग्लूकोज 6 फोस्फेट, ठीक है, हेक्सोकाइनेज इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फोस्फेट एंड ग्लूकोकाइनेज एक्टिवेटेड बाय इंसुलिन एंड इनहिबिटेड बाय ग्लूकागॉन. मतलब इंसुलिन एक्टिवेट करेगा ग्लूकोकाइनेज को ताकि ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो, ठीक है, और ग्लूकागॉन इनहिबिट करेगा ग्लूकोकाइनेज को और ग्लाइकोलाइसिस को होने से रोकेगा, ठीक है. Next, phosphofructokinase. So phosphofructokinase enzyme is activated by insulin, AMP and fructose 2,6 bisphosphate and inhibited by glucagon, ATP, citrate and cyclic AMP. Pyruvate kinase is activated by insulin and fructose 1,6 bisphosphate inhibited by glucagon, ATP and cyclic AMP. ठीक है, और एनर्जेटिक्स की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया, टोटल 7 ATP जो है विच इज़ द नेट गेन इन द ग्लाइकोलाइसिस. हाँ, इन एनारोबिक पाथवे, बिकॉज अपन ने देखा एनारोबिक पाथवे में क्या हो रहा है, जो NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है और वही यूटिलाइज हो जाता है एनारोबिक पाथवे में. तो 5 ATP यहाँ से कैंसिल कर दें 7 में से, तो टोटल कितना आ जाएगा? 2 ATP. सो 2 ATP इज द नेट गेन ऑफ ATP इन एनारोबिक पाथवे. सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस. इसमें अपन ने उसकी स्टेप देखी, रेगुलेशन देख लिया और अपन ने एनर्जेटिक्स देख लिया, ठीक है. और अपन ने टोटली मतलब ग्लाइकोलाइसिस का एक क्वेश्चन तैयार कर लिया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आता है ग्लाइकोलाइसिस. तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बायोकेमिस्ट्री एग्जामिनेशन. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू.